Dear students, Assalamu alaikum. Today's lecture is about testing web applications. Before starting today's topic, we recap the previous lecture. The previous lecture was about software quality assurance, and first of all we discussed different elements or key elements of software quality assurance, and the first key element that we discussed was standards. There are different organizations that develop and update standards related to the software quality, and key organizations are IEEE and ISO, and to how extent we are bound to follow quality standard, it depends on the nature of the project contract. Sometimes organizations follow voluntarily, but sometimes your client, your customer enforce you to follow some specific standards related to that specific product. And then we discussed about reviews and audits, and review is also called like technical reviews, and it is a quality assurance activity that is more specific to initial stages of development. If we conduct reviews at requirements phase or design phase, then the benefit of review is quite substantial. And we discussed in our previous lecture that how the cost rises when we do not perform reviews at initial stages of the product development. Then testing is also key activity of the software quality assurance process, and we normally do testing in the form of developing test cases and then implementing or then conducting those test cases. And then we said that error collection and analysis is also a key element, and we discussed statistical quality assurance later on in the last lecture, and collection and analysis helps to estimate the number of errors or possible defects, and we can improve our process to develop better quality product. And then we discussed change management and quality. It is also major activity. Change control board is the body within the organization that do the change management. Either we accept or reject the change, and what is the time of change when we are accepting or rejecting. So these all key issues are considered and done by the change control board. And then education is also an important element. We have to educate our team members and also juniors that are in specific teams. So in this way we can improve our overall organizational process infrastructure, and definitely it will lead to better quality product. And then vendor management is how to deal with the vendors in the context of software quality. And there are different type of services that we acquire from the vendors. Sometimes we get off-the-shelf products, sometimes we provide specific requirements to the customer, and then we have to have some sort of quality guidelines for each type of vendor. And then we discussed about security management, and security is a key issue in today's software product scenario, because most of the time we are dealing with we are using web applications, and data privacy issues are the key issues that we have to take care. And then safety in different domains, we have very critical requirements that belong to the human lives, and we have to take care of those requirements. Otherwise there may be quite serious consequences of not following the quality standard in that specific domain.
and the risk management is also related to the safety and security. Any event that is not positive or negatively affect the software product, if that happens, that how we are going to tackle that, or in other words we may say that it is a part of error handling. If there are some defects and there is some problem with the application, so what will be the consequences and how our product is going to tackle it. Then we discussed the general software quality assurance task. First of all, we should prepare or plan the quality plan, and then we have two type of activities, major activities: quality control activities and quality assurance activities. Reviews and inspection are part of the quality control activities, and quality assurance activities are mainly the testing activities, where we develop and plan the test cases and do the actual testing. And overall process improvement is also part of the SQA task. And then we discussed about the goal, attributes and metrics. We said that when we plan for the quality assurance activities, definitely we have some goals, and goals are: we want to achieve requirements quality, design quality, code quality, and in general quality control effectiveness. So we discussed different attributes in these four categories, goals, and then some metrics. Through that metrics we can somehow measure the effectiveness of our quality activities, or how much we are achieving our goals in that specific context. And then we discussed about the statistical quality assurance, and we also discussed about how to analyze or how to measure the effectiveness of our quality process. And in that process we discussed different metrics like effort to plan, effort to conduct the actual activities, and then number of errors we are identifying, and how much effort we need to rework or rectify those errors. So these all are the different metrics that we can actually use to measure the effectiveness of our quality activities. And finally we discussed about software reliability. It is also a key attribute, and it is about for how long application executes or in operation without any failure, and it is also related to the somehow the software safety, although these are two different attributes but still related with each other. Now we start today's topic, that is about quality of web applications. And we start with the dimensions of quality, and these are the dimensions that are desirable or required in web application context. So we also discussed in our previous lectures about web application quality, but today our focus is more towards different quality activities. Previously we discussed only the dimensions or the attributes of the web application quality. It is just a brief look, a quick look. And first of all, content. We definitely need to assess the contents, and content can be measured in two ways or assessed in a two-way. One is the syntactic and the other one is semantic. Syntactic mean कि कैसे जो है स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, प्रॉपरली जो है वो उसको प्रेजेंट किया गया है, जबकि सिमेंटिक मीन के जो फंक्शनैलिटी डिज़ायर है, जो मीनिंग उससे अपने कन्वे करने, आइदर that content is conveying those meaning, those message or not. इसी तरह से second one is function, and function is directly related to the functionality or conformance of the customer or user requirements. आप कितना जो है properly जो भी requirements थी customer की उसको किस हद तक जो है आपने fulfill किया है.
The third dimension is the structure, and structure is about the structure of the application. If you are going to change the functionality or the organization of the application, or your application is going to interact with with some other application in future, so is it extensible or not. और फिर इसके बाद यूजिबिलिटी है, और यूजिबिलिटी इज़ अ की एलिमेंट दैट इज़ रिलेटेड टू द यूज़र इंटरफेस ऑफ द वेब एप्लीकेशन, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे उनको टेस्ट किया जा सकता है. उस navigability is also important quality dimension for web applications, and we consider different links within the application or outside the application, और इसको भी हम डिटेल में देखेंगे. इसी तरह से परफॉर्मेंस एक और इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है कि जब नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ते हैं, आपकी वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं, या नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस बढ़ती हैं, तो हाउ इट रिएक्ट्स या हाउ इट ऑपरेट्स, आपके सिस्टम जो है कैसे बिहेव करता है, तो इट इज़ आल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट. और फिर कंपैटिबिलिटी है. कंपैटिबिलिटी जो है इट मीन्स के जब डिफरेंट तरह की कॉन्फ़िगरेशंस होंगी तो आपकी एप्लीकेशन कैसे जो है वो बिहेव करेगी, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगी. इसी तरह से इंटरऑपरेबिलिटी है, और इंटरऑपरेबिलिटी ये है कि जब आपकी एप्लीकेशन ने दूसरी वेब एप्लीकेशंस के साथ इंटरेक्ट करना है तो वो किस हद तक जो है सक्सेसफुली इंटरेक्ट करेगी. और सिक्योरिटी है, और सिक्योरिटी भी इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि जब हम साइबर क्राइम्स की बात करते हैं और नेट के ऊपर डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज़ जो है जो कि हो सकती हैं, आपके डेटा के प्राइवेसी के इश्यूज़ हो सकते हैं, आपकी अनऑथराइज्ड जो है एक्सेस हो सकता है, आपकी सिस्टम के अंदर कोई अनऑथराइज्ड चेंज हो सकती है, डिफरेंट तरह की वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती हैं, और इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे. अब हम बात करते हैं कि क्या पॉसिबल कैटेगरीज हो सकती हैं एरर्स की वेब एप्लीकेशन इन्वायरमेंट में, या वेब एप्लीकेशन इन्वायरमेंट की जब बात करें तो किस तरह के एरर्स जो है आप थ्रू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अनकवर करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं. तो मेजर जो उसकी क्लासिफिकेशन हो सकती है, द फर्स्ट वन इज़ कि आपकी क्लाइंट साइड के ऊपर क्या प्रॉब्लम्स हैं. क्लाइंट साइड की जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर जो है क्या कुछ एरर्स हो सकते हैं, और उनको जो है आपने मेक श्योर करना होता है कि वो ना हो. और इसके लिए आगे हम डिटेल में देखेंगे कि क्या कुछ किस तरह से इसको हम इंश्योर करा सकते हैं. सेकेंडली डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के क्लाइंट साइड के ऊपर भी डिफरेंट सेटअप हो सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन हो सकती हैं, हार्डवेयर चेंज हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट हो सकते हैं. इसी तरह से सर्वर साइड की जो कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है उसको भी देखना होगा, और उसमें जो पॉसिबल जो है एरर्स हो सकते हैं और उनको हमें आइडेंटिफाई या अनकवर करना होगा. और इसी तरह से वेब ऐप की आपकी जो अपनी एप्लीकेशन है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है सर्वर के ऊपर, जो उस स्पेसिफिक जो भी उसका प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जब उसको टेस्ट किया जाए, रन किया जाए, और उसको देखा जाए कि उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं. और फिर इसी तरह से यहाँ पे 3 लेयर्स आर्किटेक्चर की बात हो रही है, और 3 लेयर्स आर्किटेक्चर से मुराद ये है कि जब एक क्लाइंट साइड है, एक सर्वर साइड है, और फिर इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है, तो ये जो कम्युनिकेशन है दिस वन इज़ अ थर्ड लेयर. और ये तीनों किस तरह से जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है, और क्या कुछ इसमें पॉसिबल एरर हो सकते हैं, इनको अनकवर करना होता है, और ये एक अलग से इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं. और फिर इसी तरह से स्टैटिक ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, व्हाट डज़ इट मीन कि जब आपके एक स्पेसिफिक जो क्लाइंट साइड है, एक स्पेसिफिक सेटअप के साथ कि जी ये स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ये स्पेसिफिक जो है हार्डवेयर होगा, और ये स्पेसिफिक जो है एप्लीकेशन होगी, इस स्टैटिक इन्वायरमेंट के ऊपर भी आपने उसको देखना होता है. आल्दो की डिफरेंट वेरिएशंस हो सकती हैं, लेकिन एक इन जनरल जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है उसको टेस्ट करना, और उसमें क्या एरर हो सकते हैं इसको भी एक्सप्लोर करना, या इसमें भी एरर्स को आइडेंटिफाई करना, ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब एप्लीकेशन ये एक ज़रूरी है. ये एक अलग से कैटेगरी हो सकती है एरर्स की. अब हम बात करते हैं कि टेस्टिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वेब एप्लीकेशन के लिए. वेब एप्लीकेशन की जब हम टेस्टिंग करेंगे
कोई डिफरेंट जो हम क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ द कंटेंट मॉडल। वी हैव टू रिव्यू द कंटेंट मॉडल, जो ओवरऑल कंटेंट है उसको देखना है, उसके अंदर जो एरर्स हैं उसको अनकवर करना है। और फिर इसी तरह से सेकंड वन इज़ इंटरफेस मॉडल, और इंटरफेस मॉडल जो है अगेन यूज़र से रिलेटेड है कि जो आप यूज़र को जो इंटरफेस दे रहे हैं वो किस तरह से सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है आपके एप्लीकेशन के साथ। ये एक दूसरा जो है एक स्टेप है, या इसको यूँ कह सकते हैं कि हाउ टू टैकल विद द वेब एप्लीकेशन। तो ये डिफरेंट लेवल्स के ऊपर ये टेस्टिंग एक्टिविटीज़ होंगी, और इसके थ्रू आप मेक श्योर करेंगे कि आपकी वेब एप्लीकेशन जो है वो एरर फ्री है। थर्ड लेवल इज़ द डिज़ाइन मॉडल। ये थर्ड स्टेप इज़ द डिज़ाइन मॉडल, और डिज़ाइन मॉडल जो है आपको हेल्प आउट करेगा। जब आप उसको टेस्ट करेंगे तो आप यू विल ट्राई टू अनकवर एरर्स रिलेटेड टू द नेविगेशन। आमतौर पे जो नेविगेशन के एरर्स हैं कि किस तरह से आपका डिज़ाइन जो है उसके अंदर ये इससे रिलेटेड, नेविगेशन से रिलेटेड आप एरर्स को अनकवर करेंगे। फोर्थ वन ये है कि आपके यूज़र के जो इंटरेक्शन जो होनी है इंटरफेस के साथ, उसमें नेविगेशन मैकेनिक्स क्या है, किस तरह से नेविगेट करेगा यूज़र, इसको आपने देखना है, उसकी प्रेजेंटेशन को देखना है। और फिफ्थ वन इज़ द फंक्शनल कंपोनेंट्स, उसको देखना है। ये एक और अलग से लेवल है, इसको इट इज़ अ काइंड ऑफ यूनिट टेस्टिंग है कि डिफरेंट जो फंक्शनलिटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, कोई एक स्पेसिफिक इवेंट फंक्शन, उसको टेस्ट करना। फिर इसी तरह से जो है आप नेविगेशन को थ्रू आउट द आर्किटेक्चर देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पूरी एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में। फिर इसी तरह से डिफरेंट इन्वायरमेंटल जो आपके कन्फिग्रेशंस हैं, डिफरेंट तरह के जो पहले मैंने जैसे आपको बताया डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर्स हो सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं, उसके ऊपर देखना कि क्या आपकी एप्लीकेशन कंपैटिबल है या नहीं है। फिर इसी तरह से सिक्योरिटी टेस्ट परफॉर्म होते हैं, और अगेन उसको भी आप डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के ऊपर टेस्ट कर सकते हैं कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर किस तरह के आपको थ्रेट्स हो सकते हैं पॉसिबल। और फिर परफॉर्मेंस टेस्ट जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं कि आपके जब नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ते हैं या ट्रांजैक्शंस बढ़ती हैं तो उसको कैसे जो है आप टेस्ट करेंगे, किस तरह के एरर्स हो सकते हैं उसके अंदर। और फिर उसके बाद आप ओवरऑल उसको देखते हैं कि जब इन सारे जो वेरिएशन या डिफरेंट फैक्टर्स हैं इसको जब चेंज करते हैं और इनको टेस्ट करते हैं तो क्या ओवरऑल जो आपकी जो भी फंक्शनैलिटी है वो डिज़ायर्ड फंक्शनैलिटी अचीव हो रही है, आपका यूज़र सेटिस्फाइड है नहीं है, और भी बाकी इस तरह के मतलब सॉफ्टवेयर के आपकी एप्लीकेशन के वाले से जो रिलायबिलिटी के कंस्ट्रेंट्स या जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो रही हैं, परफॉर्मेंस के कंस्ट्रेंट्स पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और अब इनको वन बाय वन आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंटेंट टेस्टिंग को। और कंटेंट टेस्टिंग का जो ऑब्जेक्टिव है कि जब हम इस तरह की टेस्टिंग करते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं रिलेटेड टू द कंटेंट्स, तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू अनकवर सिंटैक्टिक एरर्स। और सिंटैक्टिक एरर्स जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है, वो इनकम्प्लीट कुछ टेक्स्ट भी हो सकता है। इस तरह के जितने भी इश्यूज़ हैं माइनर, इनको माइनर इश्यूज़ कहा जा सकता है अगर इस टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। तो इस तरह के इश्यूज़ को अनकवर करना। फिर सिमेंटिक एरर्स को देखना है कि जो कंटेंट्स हैं क्या वो एप्रोप्रिएट हैं, क्या वो मीनिंगफुल है। ऐसा तो नहीं है कि वो आपके जो भी कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर वो इर्रेलेवेंट है, इसको भी देखना है। और फिर ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है कंटेंट्स का उसको भी देखना है कि किस तरह से आपने उसको ऑर्गेनाइज किया है। और इसके अंदर जो कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो हमने डिस्कस किए हैं, अगर इन क्वेश्चंस को हम आंसर करें तो होपफुली हम ज़्यादा अच्छे तरीके से इस चीज़ को असेस कर सकते हैं कि क्या हमारे कंटेंट्स जो है वो कंटेंट सही है या नहीं है। तो कंटेंट टेस्टिंग के अंदर ये क्वेश्चंस अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द इंफॉर्मेशन फैक्चुअली एक्यूरेट। सबसे पहली बात कि क्या जो हम इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं टू आवर यूज़र, इज़ इट एक्यूरेट, क्या ये सही है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स है, या ऐसे ही हमने अपने पास से स्टोरी बना दी है।
एंड द सेकंड क्वेश्चन इज द इंफॉर्मेशन कंसाइज एंड टू द पॉइंट। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, क्योंकि यूज़र, हमने पहले भी कहा कि रीडिंग जो है वो वैसे भी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर स्लो होती है, और यूज़र्स के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा लेंथी डॉक्यूमेंट्स को जो है वो रीड करें, ख़ास तौर पे जब वेब एप्लीकेशन की हम बात करते हैं। तो इंफॉर्मेशन जो है, कंटेंट जो है वो कंसाइज होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। इसी तरह से इज़ द लेआउट ऑफ द कंटेंट ऑब्जेक्ट ईजी फॉर द यूज़र टू अंडरस्टैंड। जिस तरह से हमने उसको ऑर्गेनाइज किया है, वो जो स्ट्रक्चर है कंटेंट का, क्या वो ईजी टू अंडरस्टैंड है, या यूज़र को उसमें कन्फ्यूजन हो रही है टू अंडरस्टैंड दैट स्ट्रक्चर। तो बहुत ज़रूरी है कि उसको हम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करें। नेक्स्ट देखें कि कैन इन्फॉर्मेशन एम्बेडेड विद इन अ कंटेंट ऑब्जेक्ट बी फाउंड ईजिली। कि अब जो डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट तरह से हमने कंटेंट जो है वो उसको प्रेजेंट किया है, तो जो भी हमारे डिफरेंट प्रेजेंटेशंस हैं, क्या उसके अंदर जो है हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यूज़र इजीली वहाँ तक पहुँच सकता है। ऐसा तो नहीं है कि उसको कोई अपना डिज़ायर कंटेंट देखने के लिए या सर्च करने के लिए या उस तक पहुँचने के लिए जो है उसको एफर्ट करना पड़े सही मानों में, और ये चीज़ जो है उसको फ्रस्ट्रेट करेगी। अब इसी तरह से हैव प्रॉपर रेफरेंसेस बीइंग प्रोवाइडेड फॉर ऑल इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब हम डिफरेंट जो सोर्सेज से मटेरियल लेते हैं, कंटेंट लेते हैं, जब उनको रेफ़र करते हैं तो उसको हमें प्रॉपरली रेफ़र करना चाहिए कि ये जो फैक्ट्स एंड फिगर है ये कहाँ से आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इज़ द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड कंसिस्टेंट इंटरनली एंड कंसिस्टेंट विद इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन अदर कंटेंट ऑब्जेक्ट। पहली बात तो ये कि कंसिस्टेंट है, जो हमने जिस तरह से उसको इंटरनल जो उसका स्ट्रक्चर है, जिस तरह से इंटरनली उसको प्रेजेंट किया गया है या उसको ऑर्गेनाइज किया गया है, वो भी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। और जिसके थ्रू, जैसे हम हो सकता है किसी टेबुलर फॉर्मेट में दिखा रहे हैं, या हो सकता है किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जो है उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं, तो क्या वो प्रॉपरली जो है उसके साथ कंसिस्टेंटली उसको किया गया है, कंसिस्टेंट डिस्प्ले है, कंसिस्टेंट है या नहीं है, इसको हमने देखना होता है। और फिर नेक्स्ट देखें, इज़ द कंटेंट ऑफेंसिव, मिसलीडिंग, और डज इट ओपन द डोर टू लिटिगेशन। और ये अगेन आपका कंटेंट जो है डिस्पाइट ऑफ द डोमेन, किसी भी डोमेन के लिए आप एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो उसके कंटेंट जो है ऑफेंसिव नहीं होने चाहिए, और डेफिनेटली मिसलीडिंग भी नहीं होने चाहिए, मिसगाइड नहीं करना चाहिए थ्रू द कंटेंट्स अपने यूजर्स को। और समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन या लीगल जो है पेनल्टी पड़ जाए इस तरह के कंटेंट्स की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डज द कंटेंट इन्फ्रिंज ऑन एग्जिस्टिंग कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स। किसी दूसरे का ट्रेडमार्क, किसी दूसरे के कॉपीराइट मटेरियल को यूज़ करना जो है वो भी सही नहीं है, इलीगल है, तो आपके कंटेंट में ऐसा नहीं होना चाहिए। डज द कंटेंट कंटेन इंटरनल लिंक्स दैट सप्लीमेंट एग्जिस्टिंग कंटेंट, आर द लिंक्स करेक्ट। व्हाट डज इट मीन कि जब आप लिंक दे रहे हैं आपके कंटेंट के अंदर, आपकी अपने डॉक्यूमेंट, आपके अपने कंटेंट को आप रेफ़र कर रहे हैं, तो क्या वो प्रॉपरली वहाँ पे एग्जिस्ट करता है कंटेंट, और जो लिंक है क्या वो सही है या नहीं है। कंटेंट इटसेल्फ एक अलग इशू है, और सही लिंक होना, प्रॉपर लिंक गिवन होना, दैट इज़ अनदर इशू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज द एस्थेटिक स्टाइल ऑफ द कंटेंट कॉन्फ्लिक्ट विद द एस्थेटिक स्टाइल ऑफ द इंटरफेस। ये भी देखें तो डिफरेंट बातें हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ द इंटरफेस स्टाइल। जो आपका इंटरफेस है, ओवरऑल जो उसका स्टाइल है, जो आपका लेआउट है वेब एप्लीकेशन का, और किसी स्पेसिफिक डिवाइस के लिए अगर आपने उसको डिज़ाइन किया है, तो उसके साथ जो आपका कंटेंट का लेआउट है वो भी मैच करना चाहिए, वो उसको उसके साथ सिंक होना चाहिए, अदरवाइज वो जो है यूज़र को कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। अब हम बात करते हैं डेटाबेस टेस्टिंग की। और आजकल की जो वेब एप्लीकेशंस हैं, जो वेब सिस्टम्स हैं, उसके अंदर या उसके एक मैंडेटरी सा कंपोनेंट है, एंड दैट इज़ डेटाबेस। के आमतौर पे हम डेटा के साथ डील कर रहे होते हैं रन टाइम के ऊपर, या डायनामिक डेटा के साथ डील कर रहे होते हैं, तो इसको भी बहुत ज़रूरी है टेस्ट करना कि जो आपकी एप्लीकेशन डेटाबेस के साथ
जो आपकी कनेक्टिविटी है, जो आपकी कम्युनिकेशन है, क्या वो वैलिड है या नहीं है। जब क्लाइंट जो है, आपका यूज़र जो है क्लाइंट साइड से कोई रिक्वेस्ट भेजता है या कोई क्यूरी जो है इनिशिएट करता है, तो वो डिफरेंट फॉर्म में होती है उस फॉर्मेट से जो कि जब आपकी एप्लीकेशन डेटाबेस सर्वर के साथ या डेटाबेस का जो एंड है उसके ऊपर जब कम्युनिकेट करती है आपकी एप्लीकेशन, तो वो डिफरेंट फॉर्मेट होता है। तो आपको अब इस चीज़ को देखना होता है कि वो प्रॉपर जो है कन्वर्जन हो रही है, यूज़र की रिक्वेस्ट की प्रॉपर कन्वर्जन हो रही है उस फॉर्मेट में जो कि डेटाबेस साइड समझ सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके। एंड सिमिलरली ज़रूरी नहीं है कि डेटाबेस जो है वो आपकी वेब एप्लीकेशन का, आपकी सर्वर साइड का पार्ट हो। डेटाबेस कहीं रिमोट भी हो सकता है, डेटाबेस साइड, डेटाबेस सर्वर। तो उसको भी टेस्ट करना, उसको भी देखना, उसके भी डिफरेंट अपने एरर्स, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसी तरह से जो आपकी ट्रांसमिशन है रॉ डेटा, आपकी जब क्यूरी है वो सर्वर्स आपका डेटाबेस से लेता है, तो डेटाबेस उसको रॉ फॉर्मेट में कह सकते हैं, रॉ डेटा होगा, और सर्वर ने फिर अगेन उसको प्रेजेंट कर रहे हैं आपको, यूज़र को जो है मैनेजेबल या रिप्रेजेंटेबल उसको कह लें, जो कि इजी टू अंडरस्टैंड हो यूज़र के लिए। तो टेस्टिंग जो है डेटाबेस, उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं या जो चीज़ हमने मेक श्योर करनी है, दैट इज़ के जो इन्फॉर्मेशन पास हो रही है वो वैलिड इन्फॉर्मेशन पास हो रही है, जो यूज़र से आप डेटाबेस साइट पे थ्रू सर्वर करना चाह रहे हैं, थ्रू वेब एप्लीकेशन। और फिर इसी तरह से जो आपकी वेब एप्लीकेशन है उसके ऊपर जो भी आपने स्क्रिप्ट्स जो है वो, फिर इसी तरह से जो आपकी वेब एप्लीकेशन है उस पर जो स्क्रिप्ट्स हैं और वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहे हैं और प्रॉपरली जो है डेटा को जो है या जो भी कम्युनिकेशन हो रही है दूसरे एंड के साथ वो प्रॉपर हो रही है। फिर इसी तरह से जो आपका डेटा पास हो रहा है वो एक्यूरेट हो रहा है, सही हो रहा है, करेक्ट डेटा पास हो रहा है, कोई डेटा लॉस नहीं हो रहा आपका। और फिर दोबारा जो आपकी क्यूरीज हैं वो जो पास हो रही हैं डेटा मैनेजमेंट लेयर को, वो भी प्रॉपर हैं। जो यूज़र की इंटेंशन थी, जो यूज़र की रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी, वही सेम उसी तरह की क्यूरी जो है डेटाबेस लेयर को पास हो रही है। इस स्लाइड के ऊपर देखें, यहाँ पे डेटाबेस के कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट लेयर्स बनाई गई हैं। देखें, इसको बिल्कुल बॉटम से देखना स्टार्ट करते हैं कि बॉटम पे हमारे पास डेटाबेस है, उससे ऊपर डेटाबेस लेयर है, डेटा एक्सेस की लेयर है, और यहाँ पे वो रॉ डेटा है जो कि डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं जैसे SQL है उसके थ्रू जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रही है। फिर उसके ऊपर डेटा मैनेजमेंट लेयर है, अगेन अब ये सर्वर की लेयर है और ये डेटा को मैनेज कर रहा है। और फिर यहाँ से यूज़र डेटा जो है वो आगे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की लेयर को जा रहा है, और यहाँ से फिर वेब एप्लीकेशन, और वेब एप्लीकेशन से यूज़र इंटरफेस पर डिस्प्ले हो रहा है। तो यूज़र इंटरफेस जो नीचे की जो 3 लेयर्स हैं, समटाइम्स ये जो डेटा से रिलेटेड है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है, जो मैनेजमेंट है, जो डेटा एक्सेस है, ये आमतौर पे होता ऐसे भी हो सकता है कि ये कोई और पार्टी जो है आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रही हो, और आपकी जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ आपके डेटा के साथ आपके डेटा को ले रही है आपसे थ्रू डिफरेंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं डिफरेंट, और उसको कम्युनिकेट कर रही है डेटाबेस लेयर के साथ। तो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि आपके अपने वेब एप्लीकेशन, अपना डेटाबेस हो, अपने सारे आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो, या फिर ये भी हो सकता है कि डेटाबेस जो है वो किसी और पार्टी का जो है एप्लीकेशन हो, सिस्टम हो, और उसकी सर्विस हो, और आप सिर्फ अपने एंड के ऊपर वेब एप्लीकेशन के साथ डील कर रहे हो। अब हम बात करते हैं यूज़र इंटरफेस टेस्टिंग की। और अगेन इंटरफेस टेस्टिंग जो है वो यूज़र से रिलेटेड है, और इसके अंदर हमने देखना है वी वांट टू इंश्योर दैट डिज़ाइन रूल्स, एस्थेटिक्स, रिलेटेड विजुअल कंटेंट, ये सारा कुछ जो है यूज़र को अवेलेबल है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूज़र इज़ एक्सेसिंग विदाउट एनी एरर। और इसी तरह से आपके जो इंटरफेसिंग मैकेनिज़्म है, जो किस तरह से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के साथ, इसको जो है वो टेस्ट करना है, और ये समहाउ सिमिलर टू यूनिट टेस्टिंग।
और फिर हम ये देखते हैं कि जो डिफरेंट आपके यूज़ केसेस आप जब करते हैं, बनाते हैं, डेवलप करते हैं, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आपने अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करना होता है कि वो जो डिफरेंट आपकी इंटरेक्शन है यूज़र की सिस्टम के साथ, क्या उसी तरह से जैसे कि प्लान हुई हैं, जैसे कि हमने डॉक्यूमेंट किए हैं, उसी तरह से एग्जीक्यूट भी हो रही हैं या नहीं हो रही। और फिर हम ओवरऑल इंटरफेस टेस्टिंग की बात करते हैं, और उसके अंदर से उसमें ये हो सकता है कि हम कुछ सिलेक्टेड यूज़ केसेस उठाएं और इन जनरल जो है इंटरफेस को टेस्ट करें। और सिमिलरली जो है जो पहले हमने बात की, डिफरेंट जो वेरिएशन हो सकती हैं इन्वायरमेंट की, हार्डवेयर की और बाकी जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और इन चीज़ों की डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के साथ हम उसको देखें कि क्या वो कंपैटिबल है या नहीं है। अब हम डिटेल में बात करते हैं कि हाउ टू टेस्ट इंटरफेस मैकेनिज़म्स। तो इंटरफेस मैकेनिज़म्स क्या हो सकते हैं, इसके अंदर देखें, फर्स्ट वन इज़ द लिंक्स। आप डिफरेंट तरह के हाइपर लिंक्स क्रिएट करते हैं अपनी वेब एप्लीकेशन में, और उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं वो क्या हैं। फर्स्ट वन इज़ कि प्रॉपर जो कंटेंट है आप उस तक पहुँचें। जब आप टेस्ट कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन, तो लिंक्स के कॉन्टेक्स्ट में हमने ये चीज़ें देखनी है कि जो भी हाइपर लिंक है क्या वो उस डिज़ायर्ड कंटेंट तक आपको लीड कर रहा है, लेके जा रहा है या नहीं लेके जा रहा। और फिर इसके लिए एक अच्छी एक्टिविटी ये हो सकती है या अच्छी प्रैक्टिस ये है कि वी शुड बिल्ड अ लिस्ट ऑफ ऑल द लिंक्स जो कि डिफरेंट कंटेंट्स के ऊपर आपके लेके जा रहे हैं। अब वो जो आपने लिस्ट बना ली है सारे लिंक्स की, उसको आप वन बाय वन टेस्ट करें, और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि कोई बैड यूआरएल्स तो नहीं है, कोई ऐसी यूआरएल तो आपने नहीं दिया कि जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, जो कि अब अवेलेबल नहीं है, और इसी तरह से आपके अपने कंटेंट के अंदर कोई ऐसे लिंक्स तो नहीं है जो कि कंटेंट अवेलेबल ही नहीं है। तो इस चीज़ को आपने वो देखना है। और फिर इसी तरह से आप समटाइम्स दूसरी वेब एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो इन लिंक्स को भी देखना है कि क्या वो एक्सेसिबल हैं थ्रू योर हाइपर लिंक्स और नॉट। तो ये जो चीज़ है, ये लिंक्स के थ्रू आप एक लिंक्स जो है एक मैकेनिज़्म है, और इसको वेरीफाई कर सकते हैं, और ये मैनुअल भी हो सकता है, और इसके लिए टूल्स भी अवेलेबल हैं। आप ऑटोमेटेड टेस्टिंग भी कर सकते हैं कि किस तरह से आप इन सारे लिंक्स को वेरीफाई करें। और फिर सेकंड जो इसके अंदर मैकेनिज़्म है, दैट इज़ थ्रू फॉर्म्स। फॉर्म्स के थ्रू जो है यूज़र इंटरेक्ट करता है आपकी वेब एप्लीकेशन के साथ। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस हैं जब आपने इसको टेस्ट करना है, तो क्या डिज़ायर्ड है, किस तरह से देखना है। अब लेबल्स जो हैं दैट आर करेक्टली आइडेंटिफाइड, ठीक है, जो भी फील्ड्स हैं उसके साथ प्रॉपर उसका टैग या उसका लेबल है, उसको मिसलीडिंग नहीं है। और फिर इसी तरह से जो आपकी मैंडेटरी फील्ड्स हैं फॉर्म्स की, दैट मस्ट बी डिस्टिंक्ट, या विजुअली जो है आप उसको हाईलाइट करें, क्लियर पता चलना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि मोस्टली जो मैंडेटरी फील्ड्स होती हैं उनके साथ स्टैरिक बना होता है, और फिर स्टैरिक को वैसे डिस्क्राइब भी नीचे किया होता है। अगर ना भी किया हो तो स्टिल यूज़र अंडरस्टैंड करता है, कन्वेंशन सी बन गई है कि इट इज़ मैंडेटरी फील्ड। इसी तरह से एक और जो कंसिडरेशन है फॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में, वो ये है कि जब आप फॉर्म फिल इन करते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड करते हैं टू द सर्वर, तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपकी इंफॉर्मेशन जो आपने सेंड की है सर्वर साइड के ऊपर, वो सारी इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है। कहीं ऐसा नहीं हो रहा कि बीच में आपकी कम्युनिकेशन, आपका डेटा जो है वो कहीं लॉस हो रहा है। और इसी तरह से समटाइम्स आपके कुछ फील्ड्स ऐसी भी हो सकती हैं फॉर्म्स में जिनके लिए कुछ अप्रोप्रिएट डिफ़ॉल्ट्स हो सकते हैं, और आप उनको जो है यूज़ करते हैं। उन अप्रोप्रिएट डिफ़ॉल्ट्स को यूज़ करना भी चाहिए, जो कि हेल्प आउट करते हैं आपके यूज़र को उसको अंडरस्टैंड करने में। एक और जो इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है वो ये है कि आपके जो ब्राउज़र के डिफरेंट फंक्शंस हैं, कहीं वो तो आपके डेटा को करप्ट नहीं कर रहे। और जैसे इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे आपके पास बैक का बटन होता है, बैक एरो बना होता है, इफ़ यू क्लिक दैट बटन
either your data is or content is contained or not, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको भी टेस्ट करना चाहिए इसके फॉर्म्स के टेस्टिंग के वाले से। और फिर उसके बाद आपने डिफरेंट स्क्रिप्ट्स जो आपने डेवलप किए हैं उसको टेस्ट करना होता है कि क्या वो जो है प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डिफरेंट स्क्रिप्ट्स हो सकते हैं, क्लाइंट साइड के ऊपर भी हो सकते हैं, सर्वर साइड के ऊपर भी हो सकते हैं। तो जब फॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो हम क्लाइंट साइड की बात कर रहे हैं, तो उसको हमने टेस्ट करना होता है। फॉर्म्स ही के हवाले से ये भी देखना ज़रूरी है कि जो आपने डिफरेंट फील्ड्स दी हैं फॉर्म्स के ऊपर, वो क्या प्रॉपर विड्थ है उनकी डेटा टाइप्स जो है, ऐसा तो नहीं है कि आपने न्यूमेरिक डेटा लेना है और उसके अंदर अल्फ़ाबेटिक भी जो है आप एंट्री हो रही है, या और इस तरह के प्रॉपर जो चेक्स हैं वो होने चाहिए। और सिमिलरली लेंथ ऑफ टेक्स्ट, कोई मैक्सिमम जो है एक नंबर होगा कि इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या इतनी आप इनपुट दे सकते हैं, तो उसको भी आपने मेक श्योर करना है कि उससे आप उसको क्रॉस तो नहीं कर आपका यूज़र, या वो क्रॉस तो नहीं हो रही। इसी तरह से आपने ये भी देखना है कि जो डिफरेंट मेन्यूज़ हैं फॉर्म्स के ऊपर, क्या उनके लिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन अवेलेबल हैं या नहीं है। और जो आपका ऑर्डर है डिफरेंट फील्ड्स का फॉर्म्स की, या उसको हम कंट्रोल्स भी कह सकते हैं, वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसको रैंडम नहीं होना चाहिए। और फिर इसी तरह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्राउज़र के जैसे ऑटो फिल के ऑप्शन होते हैं वो आपके जो डेटा को है उसको करप्ट करते हैं, उसको आप इसको भी आप मेक श्योर करते हैं। ये सारी टेस्टिंग की बात करेंगे, जब यूज़र इंटरफेस टेस्टिंग आप करेंगे उसके अंदर फिर हमने डिफरेंट इंटरफेस मैकेनिज़म्स की बात कर रहे हैं। और फॉर्म के अंदर जब हमने फॉर्म्स को टेस्ट करना है तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे रिलेटेड हम एरर्स देख सकते हैं। और फिर इसी तरह से फाइनली टैब की आमतौर पे हम यूज़ करते हैं, क्या जब टैब की यूज़र यूज़ करेगा तो वो प्रॉपर मूवमेंट होगी या नहीं होगी। अगेन कि जो आपके कंट्रोल्स हैं, जो फील्ड्स हैं, उनका प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, और टैब की को भी उसी तरह से आपने प्रॉपरली मैनेज किया हो। अब हम बात करते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की, एंड इट इज़ ए काइंड ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। और ये अगेन फॉर्म जो टेस्टिंग होती है उसी के साथ रिलेटेड है। जैसे पिछली स्लाइड में मैंने थोड़ा सा जिक्र किया कि जब आपका फॉर्म जो है उसके ऊपर डिफरेंट जो आप वैल्यूज़ ले रहे हैं, तो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स आप क्लाइंट साइड के ऊपर रन करते हैं और वो देखते हैं, पहले उन स्क्रिप्ट्स को भी देखना है प्रॉपरली वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसे आपने वैलिडिटी चेक्स लगाए हुए हैं तो वो थ्रू स्क्रिप्ट्स होते हैं, तो वो क्या प्रॉपरली काम कर रहे हैं या उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, इसको देखना। तो ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के साथ आप उसकी कंपैटिबिलिटी भी देख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हो सकती हैं, और क्या आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंपैटिबल है या नहीं है, जो आपने स्क्रिप्ट्स लिखे हैं वो उसके साथ कंपैटिबल हैं या नहीं है। इसी तरह से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनके अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, अपनी उनकी प्रैक्टिसेस होती हैं। कि एक हो सकता है कि कोई एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो PHP के अंदर स्क्रिप्टिंग कर रहा हो, या आप ASP को यूज़ कर रहे हो, तो डिफरेंट अपनी अपनी कन्वेंशंस हो सकती हैं। जावा स्क्रिप्टिंग हो सकती है। अब दूसरी एक और इसके अंदर जो इंटरफेस का मैकेनिज़्म है, दैट इज़ डायनामिक HTML, के आप रन टाइम के ऊपर आपके कंटेंट्स चेंज होते हैं, डायनामिक होते हैं। तो क्या डायनामिक वेब पेजेस जो है वो आप प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और जो भी आपकी डिफरेंट कंटेंट आ रहा है या डायनामिक कंटेंट्स जो आपने डिस्प्ले करना है, तो वो कंपैटिबल है या नहीं है आपकी एप्लीकेशन के साथ, और प्रॉपरली प्रेजेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। इसी तरह से आपके पास CGI स्क्रिप्ट्स होते हैं, जब आप दूसरी एप्लीकेशन के साथ या दूसरे जो है सर्विसेज के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और ये डेटा इंटेग्रिटी को जो है वो देखते हैं। ये भी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की एक आप इसको टाइप कह सकते हैं। जब आप डेटा जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं और डेटा कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो क्या वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा, इस चीज़ को देखना। और इसके अंदर परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी आती है, और इसको हम आगे परफॉर्मेंस टेस्टिंग को फर्दर डिस्कस करेंगे। फिर स्ट्रीमिंग कंटेंट है कि आप जब आपके पास एक स्ट्रीमिंग जो है कंटेंट आ रहे हैं, एक लाइव स्ट्रीमिंग है,
तो उसके ऊपर आपने देखना है कि कंटेंट्स जो है वो अप टू डेट हैं और जो प्रॉपरली जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं, और यूज़र जो है उसको विदाउट एनी एरर कैन सस्पेंड और कैन रीस्टार्ट विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। तो इस चीज़ को देखना होगा। फिर इसी तरह से कुकीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना होगा कि क्या प्रॉपर जो है वो परसिस्टेंस है या नहीं है कुकीज़ की, कोई उसकी अपनी एक्सपायरी डेट होगी, क्या उस डेट वो जो कंस्ट्रेंट्स हैं कुकीज़ के हवाले से उनको आपने टेस्ट करना है। अच्छा, कुछ जो एप्लीकेशन स्पेसिफिक जो है आपके मैकेनिज़म्स हो सकते हैं, और वो अगेन एप्लीकेशन या डोमेन स्पेसिफिक होंगे और उनको आपने टेस्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, और इस एग्जांपल को लेने से पहले जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें भी अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप चेकलिस्ट बनाएं कि क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ जो है वो आपकी डिज़ायर्ड फंक्शनैलिटी हैं जो आपकी एप्लीकेशन ने परफॉर्म करनी है, और फिर उन फंक्शनैलिटीज़ को जो है वन बाय वन आप टेस्ट करें। अब एक एग्जांपल देखें कि सपोज़ हम शॉपिंग कार्ट फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना चाह रहे हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट तरह की टेस्टिंग हो सकती है। हम बाउंड्री टेस्ट जो है, बाउंड्री टेस्ट की एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ़ आइटम्स जो है वो कार्ट के अंदर क्या हो सकता है, उसको अगर हमने टेस्ट करना है तो क्या कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं। देखिए, वी नीड टू टेस्ट चेकआउट रिक्वेस्ट। जब हम चेकआउट रिक्वेस्ट करें स्पेसिफिकली जब एम्प्टी हो, ठीक है, कार्ट, तो ये एक तरह की टेस्टिंग है। बाउंड्री टेस्ट आपने पढ़ा होगा कि जिसके अंदर हम जो दोनों एंड की लिमिट्स होती हैं किसी स्पेसिफिक डेटा से रिलेटेड उसको टेस्ट करते हैं, और उससे आगे पीछे देखते हैं कि क्या ये प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा, आपकी एप्लीकेशन जो है प्रॉपरली बिहेव कर रही है, उसको प्रॉपरली मैनेज कर रही है या नहीं कर रही। तो फिर इसी तरह से यू नीड टू टेस्ट द प्रॉपर डिलीशन ऑफ एन आइटम। कोई आप शॉपिंग कार्ट से डिलीट करना चाह रहे हैं, इसी तरह से आप अगर यू हैव टू टेस्ट के जब आपने परचेज़ कर लिया है तो आपकी जो कार्ट है वो एम्प्टी हो गई है, ठीक है। और इसी तरह से आप ये भी देखना चाह रहे हैं कि कार्ट के जो भी कंटेंट्स हैं, जो भी आपने आइटम सेलेक्ट किए हैं, वो कितने परसिस्टेंट है, कितने टाइम के लिए जो है आ गई। ऐसा तो नहीं है आप किसी स्पेसिफिक पेज के ऊपर मूव करें और आपकी कार्ट आइटम्स जो है वो डिलीट हो जाएं, मतलब आपकी इंटेंशन नहीं है, विदाउट योर इंटेंशन, और वो मिस्टेकनली जो है वो डिलीट हो जाए, या उसके अंदर कुछ और जो है चेंजेस जो है एबनॉर्मल चेंजेस अकर हो। और फिर इसी तरह से आप इस चीज़ को टेस्ट करें कि क्या इन फ्यूचर जो है वो आप फ्यूचर अगर ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं या फ्यूचर में वो परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो जो डिफरेंट आपने आइटम सेलेक्ट किए हैं अपने कार्ड के अंदर जो है वो क्या उनको सेव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये एक एग्जांपल है जो कि हमें एप्लीकेशन स्पेसिफिक जो है इंटरफेस मैकेनिज्म की अंडरस्टैंडिंग दे रही है। अब हम बात करते हैं यूजिबिलिटी टेस्टिंग की, और यूजिबिलिटी टेस्टिंग जो है अगेन इंटरफेस टेस्टिंग ही का पार्ट है जब हम यूज़र इंटरफेस की बात कर रहे हैं, और इसके अंदर डिफरेंट हमारी कैटेगरीज हो सकती है यूजिबिलिटी से रिलेटेड, और हर कैटेगरी के लिए जो है हमें टेस्टिंग परफॉर्म करनी चाहिए। और अगेन उसकी बेस के ऊपर हम देख सकते हैं कि किस हद तक हमने किसी गोल को प्रॉपरली अचीव किया है या नहीं किया। लेकिन यूजिबिलिटी टेस्टिंग होगी कैसे, इसका क्या प्रोसीजर है। First of all, we have to decide which are the categories that we want to test, and then we need to select the participants. और participants कौन होने चाहिए? In ideal case ये real users होने चाहिए जिन्होंने आपकी एप्लीकेशन को यूज़ करना है। और फिर उसके बाद हमने we need to define different task जो कि वो यूज़र्स, वो आपके पार्टिसिपेंट्स परफॉर्म करेंगे, और फिर जब वो यूज़र टास्क परफॉर्म करेंगे तो उसमें क्वाइट पॉसिबल कि वो डिफरेंट एरर्स जो है वो अकर होंगे या अनकवर होंगे, और फिर उसको जो है आपने उसकी बेस के ऊपर आपने देखना है कि किस हद तक आपकी यूजिबिलिटी जो है वो
यूजिबिलिटी अच्छी है आपकी एप्लीकेशन की या नहीं है। और यूज़र की ओपिनियन भी आप उसमें ले सकते हैं, पार्टिसिपेंट्स की ओपिनियन भी ले सकते हैं। डिफरेंट उसके मेथड्स हो सकते हैं, वर्बल भी हो सकता है, वो थ्रू क्वेश्चनर भी हो सकता है, और आप खुद भी एज एन ऑब्जर्वर जो है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं कि क्या कुछ प्रॉब्लम्स आकर हुए। यूजिबिलिटी टेस्ट जो है वो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर हो सकते हैं, और फर्स्ट वन जो है, एक जो उसका पहला इनिशियल लेवल है, दैट इज़ के यू टेस्ट फॉर द स्पेसिफिक मैकेनिज्म। जैसे हमने फॉर्म की बात की, किसी एक फॉर्म को आप टेस्ट करना चाह रहे हैं कि उसके साथ जो एसोसिएटेड फंक्शनैलिटी है क्या वो प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही। सेकेंड लेवल इज़ द सिंगल वेब पेज। आपकी एप्लीकेशन का कोई एक पेज हो सकता है जिसको आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, और उसके ऊपर मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं जिनको टेस्ट किया जा सकता हो। और थर्ड लेवल जो है, कंप्लीट वेब एप्लीकेशन को आप टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो ये 3 डिफरेंट लेवल्स हैं, कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म, कोई सिंगल पेज, या पूरी वेब एप्लीकेशन। हमने थोड़ी देर पहले कहा कि डिफरेंट कैटेगरीज हैं, और उन डिफरेंट कैटेगरीज के लिए आप यूजिबिलिटी टेस्ट जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो वो डिफरेंट पॉसिबल कैटेगरीज क्या हो सकती है? इंटरेक्टिविटी हो सकती है, हाउ यूजर इज इंटरेक्टिंग विद द इंटरफेस विद योर वेब एप्लीकेशन। इट मे बी योर लेआउट ऑफ द वेब एप्लीकेशन। लेआउट जो है किस तरह से है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से है। रीडेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, इज इट अंडरस्टैंडेबल टू द यूजर्स और नॉट, ये देखा जा सकता है। इसके अंदर आप ये डिफरेंट टेस्ट जो है कंडक्ट कर सकते हैं। एस्थेटिक्स इन जनरल आप देख सकते हैं कि कलर स्कीम और बाकी फ़ॉन्ट स्टाइल, टेक्स्ट, सारी चीज़ें वो कैसे हैं। और इसी तरह से डिस्प्ले कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आ सकता है कि जो डिफरेंट आपकी स्पेसिफिक स्क्रीन साइज़ हो सकते हैं, और उसके ऊपर डिफरेंट रेजोल्यूशंस हो सकती हैं। तो डिफरेंट स्क्रीन साइज़ और रेजोल्यूशंस के लिए किस तरह से आप इसको टेस्ट कर सकते हैं आपकी अपनी एप्लीकेशन को। टाइम सेंसिटिविटी को देख सकते हैं कि किस तरह से आपकी एप्लीकेशन जो है वो डिस्प्ले हो रही है, कितना टाइम ले रही है लोड होने में, कितना जो है जल्दी जो है डेटा कम्युनिकेट हो रहा है। इस तरह की चीज़ें इंटरफेस के कॉन्टेक्स्ट में। पर्सनलाइजेशन को देख सकते हैं, हाउ फ्लेक्सिबल और हाउ कस्टमाइजेबल योर एप्लीकेशन, कितना यूजर्स जो है उसमें चेंज कर सकता है। इसी तरह से एक्सेसिबिलिटी को आप देख सकते हैं कि हाउ एक्सेसिबल आपके जो ऐसा है वो भी हो सकता है कि जो डिफरेंट जो स्पेशल नीड्स वाले जो यूजर्स हैं, क्या उनको भी आप फैसिलिटेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो डिफरेंट ये कैटेगरीज पॉसिबल है। इस स्लाइड के ऊपर ये फिगर देखें जो कि पेज नंबर 542 से ली गई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिशनर अप्रोच से। और इसके अंदर 3 डिफरेंट पैरामीटर्स या एट्रीब्यूट्स लिए गए हैं यूजिबिलिटी के, और इसमें बताया गया है कि हम कैसे क्वालिटेटिवली जो है असेस कर सकते हैं यूजिबिलिटी को। और इसके अंदर ये एक तरह से आपको एक स्केल सा दिया गया है जिसके ऊपर आप उसको रैंक कर सकते हैं। लाइक द फर्स्ट वन इज ईज ऑफ यूज़। तो ईज ऑफ यूज़ को देखें कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मिसलीडिंग, ये डिफरेंट जो इसके लेबल्स हैं, डिफरेंट जो इसके स्टेप्स हैं, इसके ऊपर जो इनकी वैल्यूज़ हैं, मिसलीडिंग, डिफ़िकल्ट टू लर्न, और आखिर में देखें अगर टॉप के ऊपर तो इजी टू लर्न, कि ग्रेजुअली जो है बिल्कुल पुअर से एक्सीलेंट की तरफ अगर आप इसको यूं कह लें कि आप अगर आपका यूज़र जो है इसको रैंक कर सकता है ईज़ ऑफ यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में, कि क्या ये मिसलीडिंग है, ऑकवर्ड है, सिंपल है, इफेक्टिव है, या इजी टू लर्न है। इसी तरह से ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग को देखें, और जो पहला इसका लेबल है दैट इज़ कंफ्यूजिंग, इस ये पुअर साइड के ऊपर देखें एक है, और इसी तरह से समवट एम्बिगुअस, और अगर आखिरी जो इसका डिजायर्ड जो एट्रीब्यूट हो सकता है या लेवल हो सकता है दैट इज क्लियर। सिमिलरली प्रेडिक्टेबिलिटी को देखें, प्रेडिक्टेबिलिटी में द फर्स्ट वन इज इनकंसिस्टेंट, लेकिन यूनिफॉर्मिटी, लेकिन जो इसमें डिजायर्ड हो सकता है दैट इज प्रेडिक्टेबल। तो इस तरह से भी ये एक मॉडल है, एक जो है एग्जाम्पल है कि आप किस तरह से
यूजिबिलिटी को एवेलुएट कर सकते हैं। ये अगेन क्योंकि यूज़र ओपिनियन है इसलिए सब्जेक्टिव है, तो उसको हम इसी तरह की कोई क्लासिफिकेशन या स्केल्स के थ्रू हम मेजर करते हैं। अब हम बात करते हैं कंपैटिबिलिटी टेस्ट्स की, कि जब वेब एप्लीकेशन जो है वो कितनी कंपैटिबल है, तो किस तरह की जो कंसिडरेशंस हो सकती हैं इसके अंदर। और अगेन कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है, बिकॉज वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, डिस्प्ले डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ब्राउजर्स, नेटवर्क कनेक्शन स्पीड्स। These are all factors that actually raise the compatibility जो है issues जो है इससे आते हैं। और again client side के ऊपर भी ये हो सकती हैं चीज़ें different, और कुछ और फैक्टर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो सर्वर साइड के ऊपर हो। तो ये जो मेजर जो ये फैक्टर्स हैं क्लाइंट साइड के ऊपर हैं, और समटाइम्स इनकी वजह से डिफरेंट ये जो फैक्टर्स हैं इनकी वजह से माइनर इश्यूज होते हैं। आपकी लेआउट थोड़ी सी चेंज हो सकती है, कुछ कंटेंट माइनर सी जो है ना चेंजेस उसमें आ सकती हैं इन प्रेजेंटेशन, जिसको इग्नोर किया जा सकता है, यूज़र इग्नोर कर सकता है, लेकिन समटाइम्स सीरियस इश्यूज होते हैं। एंड दैट मे बी द डाउनलोड स्पीड दैट इज़ टू स्लो, या आपकी एप्लीकेशन के लिए कोई प्लगइन मिसिंग है एंड इट इज़ नॉट प्रॉपरली फंक्शनिंग, या पेज लेआउट जो है ना बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है। तो इस तरह के जो है प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो कंपैटिबिलिटी टेस्ट के लिए जो एक गाइडलाइन है, जो प्रैक्टिस है, दैट इज़ वी नीड टू डिफाइन कॉमनली इनकाउंटर क्लाइंट साइड कॉन्फ़िगरेशन। जो डिफरेंट वेरिएशंस हो सकती हैं, लेकिन आप जो समझते हैं कि आपके जो यूज़र्स जो हैं एक कॉमन जो कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहे होंगे, किस तरह का हार्डवेयर होगा, किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, किस तरह का ब्राउज़र होगा जो कि मेजॉरिटी ऑफ यूजर्स यूज़ कर रहे होंगे, तो एटलीस्ट आप उस तरह की कॉन्फ़िगरेशन के साथ अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। और फिर एक और जो अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है, दैट इज़ यू नीड टू बिल्ड अ ट्री स्ट्रक्चर फॉर द पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस। आप एक हायरार्की बना सकते हैं कि ये डिफरेंट जो कम्बिनेशंस हैं, और उन कम्बिनेशंस के अगेंस्ट आप अपनी वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। आज के लेक्चर को समराइज़ करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने वेब एप्लीकेशन की क्वालिटी के ऊपर बात की कि कैसे उसको असेस किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड विद क्वालिटी डायमेंशंस, और हमने उसमें कहा कि कंटेंट, फंक्शन, स्ट्रक्चर, यूजिबिलिटी, नेविगेबिलिटी, परफॉर्मेंस, ये सारे इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं। कंटेंट अपनी जगह पे, फंक्शनलिटी अपनी जगह पे, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, कंपैटिबिलिटी, उसकी इंटरऑपरेबिलिटी विद अदर एप्लीकेशन, सिक्योरिटी, these are all important quality attributes are the dimension that we need to test, that we need to take care। और फिर हमने कहा कि टेस्टिंग स्ट्रेटजी जो है इसके लिए क्या होनी चाहिए, और इसको हमने डिस्कस किया कि कैसे डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जो है हमें वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करना होता है। वी स्टार्टेड विद द कंटेंट एंड देन इंटरफेस, देन डिज़ाइन, और वो सारे डेटाबेस की बात की हमने। और फिर हमने जो है कंटेंट टेस्टिंग को जो है डिटेल में डिस्कस किया। कंटेंट टेस्टिंग के अंदर हमने कहा कि हमने सिंटैक्टिक जो है एरर्स को देखना होता है, सिमेंटिक एरर को देखना होता है। सिंटैक्टिक एरर्स जो है वो सिंपल्स हैं, उसको ज़्यादा ईजिली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जबकि जो सिमेंटिक एरर्स हैं उसको ज़्यादा केयरफुली जो है देखना होगा कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है और कॉन्साइज है, टू द पॉइंट है, और कॉपीराइट्स को वायलेट नहीं कर रहे, और भी इस तरह की हमने डिफरेंट इश्यूज जो कि कंटेंट से रिलेटेड थे उनको डिस्कस किया, और कैसे हम इसको इफेक्टिव बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया कि अगर उनको आंसर किया जाए तो हम एक ज़्यादा अच्छे कंटेंट की तरफ जाएंगे। फिर हमने डेटाबेस टेस्टिंग की बात की, और डेटाबेस टेस्टिंग के अंदर हमने डिफरेंट लेयर्स को डिस्कस किया, और इसके अंदर भी हमने कहा कि जो यूज़र की जो इनपुट है वो डिफरेंट होगी टोटली उस फॉर्मेट से जो कि आपका सर्वर जब आपकी एप्लीकेशन डेटाबेस से कम्युनिकेट करती है, डेटाबेस लेयर के साथ डील करती है। तो आपकी वेब एप्लीकेशन का काम है कि वो किस तरह से जो है
प्रॉपरली प्रेजेंट करती है विद प्रॉपर कंट्रोल्स आपकी इंफॉर्मेशन, आपको वो जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है। और फिर हमने ये भी कहा कि जो डेटाबेस लेयर है, जो डेटाबेस सर्विसेज हैं, वो रिमोट भी हो सकती हैं, वो थर्ड पार्टी भी हो सकती हैं, और आपकी अपनी वेब एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेटेड भी हो सकती हैं। और फिर इसी तरह से हमने यूज़र इंटरफेस टेस्टिंग की बात की, और उसके अंदर डिटेल में हमने डिस्कस किया कि हम डिफरेंट जो इंटरफेस मैकेनिज़म्स हैं उनको कैसे टेस्ट कर सकते हैं। उसके अंदर हमने फॉर्म्स को देखा, लिंक्स को देखा, उसके अंदर हमने डिफरेंट जो इनसे रिलेटेड, जो डिफरेंट मैकेनिज़म से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उन सब को हमने डिस्कस किया। फिर हमने यूजिबिलिटी टेस्ट की बात की, और यूजिबिलिटी टेस्ट के अंदर भी हमने कहा कि देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज दैट कैन बी एवेलुएटेड, दैट कैन बी असेस्ड। और फिर उसके अंदर हमने बात की कि कैसे यूजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट किया जाए। फर्स्ट वी नीड टू understand the goals or the categories that we want to test, and then we need to select the participants, और participants जो है वो real users होने चाहिए in ideal case। और फिर some प्री-डिफाइंड टास्क हो जाने चाहिए जिसको यूज़र जो है वो परफॉर्म करे। और फिर यूज़र की ओपिनियन ली जा सकती है, और वो सब्जेक्टिव भी हो सकती है, और मोस्टली वो सब्जेक्टिव ही होती है। उसको हम डिफरेंट तरह से जो है फिर क्वांटिफाई कर सकते हैं, और यूज़र्स के साथ साथ जो ऑब्जर्वर्स होते हैं टेस्टिंग के दौरान वो भी अपने नोट्स ले सकते हैं, और डिफरेंट एरर्स को नोट डाउन कर सकते हैं, डिफरेंट इश्यूज़ को जो है वो पॉइंट आउट कर सकते हैं। और फिर आखिर में हमने बात की कंपैटिबिलिटी टेस्ट की, और हमने कहा कि डिफरेंट हमारे पास हार्डवेयर्स होते हैं क्लाइंट साइड के ऊपर, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो पॉसिबिलिटी है उसको टेस्ट करें। तो हम एक कॉमन जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि एक हम उसको डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं, तो एटलीस्ट वो जो मोस्ट लाइकली कॉन्फ़िगरेशंस हैं उसके ऊपर हम उसको टेस्ट करें अपनी एप्लीकेशन को, कि वो उसके साथ कंपैटिबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर इसी तरह से हमने कहा कि ट्री स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस का, और उसको देख सकते हैं। और अगले लेक्चर के अंदर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे कि जब वेब एप्लीकेशन के हवाले से हम कुछ और डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग उस पर बात करेंगे। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर आपसे बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।